Hello students, so we were talking about plant growth and development, and in this lecture we are going to continue with the growth. Previous lecture में we did talk about the vernalization की बात हो चुकी है, photoperiodism की बात हो चुकी है. So I hope you have gone through the lectures and you're very clear about it. ठीक है? So today we are going to talk about growth. So if it has to be defined, we can term it as the irreversible increase in the mass increase in mass volume and irreversible increase in mass, volume and weight of an cell weight of a cell, organ or organism. ठीक है, so growth can be defined as irreversible increase in mass, in volume and weight of a cell, organ or organism. So that can be termed as growth. Now we have different types of growth which are observed in the plants. Basically, name of the chapter is plant growth and development. तो यहाँ पे अपन plant की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? So don't be confused with the animals. Now when you talk about growth, we have different types of growth observed in the plants. जैसे कि one of the growth that is the real growth. One of the growth that is the real growth. Real growth की बात करते हैं. So when does real growth occur? तो जब सेल के अंदर there is synthesis of cellular material. सेल के अंदर जब सेलुलर मटेरियल का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज द रियल ग्रोथ एंड दैट लीड्स टू दी अदर ग्रोथ. ठीक है, तो यहां लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ cellular material inside cell. That is the real growth. इसको रियल ग्रोथ कहा जाएगा और यही ग्रोथ आगे जाके दूसरी ग्रोथ को फॉर्म करेगी. Then there is apparent growth. So when real growth occurs, obviously that is going to show some manifestation externally as well. बाहर की तरफ भी इस ग्रोथ का, अगर सेल के अंदर ग्रोथ होती है तो सेल के बाहर की तरफ भी उसका एक एक्सप्रेशन आएगा. ठीक है, when the cells in your body they increase in size, so morphologically the size of the body is going to increase, so that is going to be termed as apparent growth. तो apparent growth की अगर बात करते हैं तो we can put it as external manifestation of growth. External manifestation of growth is termed as apparent growth. Then we have auxentic growth. So when we talk about auxentic growth, यहाँ पे there is only enlargement of the cell taking place, not the division. ये चीज दिमाग में याद रखना. क्या हो रहा है यहाँ पे? सेल enlargement हो रहा है और सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, there is only increase in the size of the cell. Cell division is not taking place. Then we have the multiplicative growth.
So when we talk about the multiplicative growth, so this is इसका उल्टा, that is cell enlargement is not taking place. Why? Cell division is taking place. So cell enlargement को कैंसिल कर देता हूँ, cell division को टिक कर देता हूँ. ठीक है. So these are various types of growth. यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ का, तो आपको याद होगा जब आप टिश्यू कल्चर करते हो, whenever there is टिश्यू कल्चरिंग हैपनिंग, तो वहां पे क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ाया जाता है, सेल का एनलार्जमेंट नहीं होता है. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टिश्यू कल्चर. ठीक है. Done. So growth, we have real growth, apparent growth, auxantic growth, and the multiplicative growth. So I hope this is very clear. Now let's talk about the characteristics of plant growth. Growth का definition बता दिया, types of growth बता दी. अब देख लेते हैं what are the characteristics of plant growth. It's not working. Characteristics of plant growth. So one of the characteristic is the plant growth is localized. Localized का मतलब it has specific areas. Plant has specific areas जहाँ से growth होने वाली है. Not every portion of the plant is going to grow. तो लिखेंगे specific area. Okay, localized that means it has specific areas. तो specific areas में कौन से specific areas है? तो यहाँ पे we need to talk about the meristem. क्योंकि मेरिस्टम इज अ मल्टीप्लिकेटिव टिश्यू जो प्लांट में देखने को मिलता है. तो यहाँ पे 3 टाइप के मेरिस्टम्स अवेलेबल है. वन इज द एपिकल मेरिस्टम. सो वी हैव द एपिकल मेरिस्टम. तो एपिकल मेरिस्टम कहां एसोसिएटेड है? तो एपिकल मेरिस्टम एसोसिएटेड है रूट की टिप के साथ, शूट की टिप के साथ. क्या लिखेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टम which is written as SAM, and then there is root apical meristem which is written as RAM. ठीक है. So the tip of the shoot is going to have the meristematic tissue, the dividing cells, and the root apical meristem is going to have the dividing cells. So this is written as SAM and this is written as RAM. दूसरा कौन सा टिश्यू है? So we have the intercalary meristem. There is intercalary meristem. Okay, so intercalary meristem की अगर बात करते हैं, so this is located between the permanent tissue. कहाँ located? This is located between the permanent tissue. Located between permanent tissue. ठीक है. And the last is the lateral meristem.
लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स, located on lateral side. And what does it help in? So it helps in increasing the girth of the plant. प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने के काम में आता है. Increases girth of plant. ठीक है. और पार्टिसिपेट कौन करता है इसमें? सो देयर इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम. ठीक है. देन ये दोनों जो पोर्शंस है, द रैम एंड द सैम, दे लीड टू द, दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी ग्रोथ. और ये जो चीज है द लेटरल मेरिस्टेम जो है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द secondary growth. ठीक है. So there is apical meristem, there is intercalary meristem, there is the lateral meristem. So apical meristem and the intercalary meristem, they are going to lead to primary growth, while the lateral meristem is going to lead to the secondary growth. So this should be very very clear. Okay, now अगर diagrammatically देखें, ठीक है सर, क्लियर. सो अगर डायग्रामेटिकली इसी चीज को देखें तो जो डायग्राम था आपने लोअर साइंस में पढ़ रखा है, तो एक बार यहां पे दिखा देता हूं. लेट्स से दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द रूट. ठीक है. सो यहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, दिस आर द एपिकल टिश्यू, जिसको अपन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एज द सैम, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम. दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टेम. और रूट में जो टिप पे टिश्यू होगा, दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज रैम, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम. और जो टिश्यू साइड की ग्रोथ करता है, that is known as the lateral meristem. और जो टिश्यू सेंटर में है, that is known as एपिकल मेरिस्टेम. उसे क्या कहा जाता है? एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है. आपने देखा होगा जब गाय ग्रेजिंग करती है तो उस टाइम पे वो पूरा ग्रास कंज्यूम नहीं करती है. लेट्स से उसने इतना ग्रास कंज्यूम किया, दिस मच पार्ट. ठीक है. तो एपिकल मेरिस्टेम तो यहां पे था, एपिकल मेरिस्टेम तो कंज्यूम हो गया, तो फिर ग्रास ग्रो कैसे करेगा? तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द एपिकल मेरिस्टेम. आई एम सॉरी, दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो वहां पे जो ग्रोथ होती है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो उस टाइम पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम काम में आता है. समझ में आई बात? क्योंकि जब गाय ग्रेजिंग करेगी, तो जैसे दिस पोर्शन हैज बीन कंज्यूम्ड, तो ये पोर्शन के पास तो सैम था, एपिकल मेरिस्टेम था, तो वो तो चला गया.
तो फिर ग्रोथ कैसे होगी ग्रास में? तो उस टाइम पे जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, दिस वुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ द ग्रास. डन. ओके, सो दिस वाज लोकलाइज्ड ग्रोथ. देन second is unlimited growth. We're talking about the characteristics. So unlimited growth की अगर बात करते हैं तो पता है stem and root they grow throughout their life. Stem and root grow throughout lifetime. It grows throughout lifetime, so it is known as unlimited growth. Then we have open form of growth. Then we have the open form of growth. Open form of growth की बात करें तो यहां पे क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, they keep on adding new cells to the plant body. Meristematic tissue keep on adding new cells to the plant body. So this is known as the open form of growth. So there is localized growth, there is unlimited growth, there is open form of growth, and there is increase in number of organs. ठीक है, प्लांट में there is, because growth हो रही है तो there is also increase in number of organs. So that is also one of the characteristics of plant growth. अपने केस में ऐसा नहीं. When you talk about animal growth, there is no increase of organs. So this is only specific to the plants. Fifth अगर देखें So जो growth है that leads to mature phase from juvenile phase. ठीक है, juvenile is young and mature is developed stage. So these are the characteristics of plant growth. तो localized है, unlimited है, open form of growth है, increase in number of organs आपको देखने को मिलेगा, and it leads to the mature stage through juvenile stage. Done. अगर यही चीज मैं animals के बारे में लिखूं तो we can mention that animals show diffuse, open नहीं है, diffuse and limited growth. Animals show diffuse, close type and लिमिटेड ग्रोथ. ठीक है, एनिमल्स की बात कर रहा हूं, प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं. प्लांट्स की बात मैंने कर ली है. दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू एनिमल्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ. So if we talk about phases of growth, we can group it into three phases. That is the formative phase, or
the phase of cell formation. Or the phase of cell formation. ठीक है? Then there is phase of elongation. Then there is phase of elongation, and the last is phase of maturation. The last is phase of maturation. Now formative phase में क्या हो रहा है, elongation वाले phase में क्या हो रहा है, maturation वाले phase में क्या हो रहा है, let's see. So formative phase में क्या हो रहा है, नए cells बन रहे हैं. ठीक है, कहाँ पे बनेंगे नए cells? The new cells are going to be formed in the meristematic area. They're going to be formed in the meristematic area, and this would give rise to the daughter cells. जो नए cells हैं, they are going to be termed as the daughter cells, and this daughter cells, some of the daughter cells would retain the ability of cell division, and some of the cell would lose the ability of cell division, and they would differentiate and take up a specific function. तो यहां पे मैं कर देता हूं right and wrong. तो daughter cells में some of the daughter cells would show cell division, while some of the daughter cells would not show division, and they would differentiate. ठीक है, so this is the formative phase. अब phase of elongation की बात करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, जो सेलुलर फिब्रिल्स है, इनके बीच में देयर इज अटैचमेंट. ठीक है, ये बॉन्ड्स है, जो ब्लू वाला जो है, दिस इज द बॉन्ड्स, दिस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और जो ये ब्लू में मैंने दिखा रखा है दूसरा जो लाइन से, दोज आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, सेल्यूलोज fibrils. They are going to represent cellulose fibrils. Now यहाँ पे होता क्या है कि in presence of an enzyme expansion, okay, यहाँ लिखेंगे expansion enzyme breaks the H bonds. Expansion enzyme breaks hydrogen bond. It breaks hydrogen bond. So the cellulose network loosen up. So the cellulose network loosen up. ठीक है, और जब सेलुलर मटेरियल लूजन अप हो जाएगा, इनके बीच में जब गैप हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, सो देयर इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल. नए सेल्स बनेंगे, न्यू मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस वुड टू लीड टू दी सेल वॉल एनलार्जमेंट. यहां लिखेंगे न्यू मटेरियल एडेड, new material added, leading to enlargement in cell wall. ठीक है, मतलब cell wall enlargement हो रही है, that is indicating there is elongation taking place. क्या हो रहा है, there is elongation taking place. ठीक है, so this is phase of elongation. I hope this is clear. This is representing the cellulose fibrils, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है.
तो एक्सपांशन नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड से टूट जाएंगे, ठीक है। तो अगर टूट जाएंगे तो जो सेलुलोज फिब्रिल्स उनके बीच में क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और जब स्पेस क्रिएट होगी दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन और एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल, ओके। और न्यू मटेरियल के एडिशन की वजह से जो सेल वॉल है उसमें क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी एनलार्जमेंट इन दी सेल वॉल, ठीक है। तो फॉर्मेटिव फेज में मैंने बता दिया सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे, जो सम ऑफ द सेल्स वुड शो सेल डिवीजन, सम वुड नॉट शो द सेल डिवीजन, ठीक है। दे वुड डिफरेंशिएट। फेजेस ऑफ इलॉन्गेशन में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सपांशन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नया मटेरियल एडअप होगा। फेजेस ऑफ मैच्योरेशन देखिए, फेजेस ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, so in this stage there is structural chemical and physiological of cells occur। सो फेजेस ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा कि जो सेल्स आपने अभी देखे थे, यहाँ पे मैंने बताया था कि सम ऑफ देम आर शोइंग सेल डिवीजन, सम आर नॉट शोइंग सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन नहीं दिखा रहे दे वुड अंडरगो द फेज ऑफ मैच्योरेशन, जहां पे दे वुड बिकम स्ट्रक्चरली, केमिकली एंड फिजियोलॉजिकली स्पेशलाइज्ड, ओके। दे वुड टेक अप अ स्पेसिफिक फंक्शन, ओके। सो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो दे आर गेटिंग व्हाट, दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड। यहां पे सेल का क्या हो रहा है, देयर इज डिफरेंशिएशन टेकिंग प्लेस, दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। फेजेस ऑफ मैच्योरेशन में सेल का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर यहां पे जैसे कंपेटिटिव लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी एक्टिविटी आपको कहां देखने को मिलेगी, तो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बट ऑब्वियसली जहां पे सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वहां देखने को मिलेगी। सो यहां लिख देते हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां देखने को मिलेगी, तो ग्रोथ वाले अगर बात करें सो दैट इज गोइंग टू बी द फेज ऑफ इलॉन्गेशन, जो यहां लिखा था मैंने, ओके। सो यहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और डिफरेंशिएशन कहां पे देखने को मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन तो आपको बताइए इन द फेज ऑफ मैच्योरेशन आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। सो लेट्स टेक इट एज 1 2 3। तो अगर इस चीज को मैं रिप्रेजेंट करूं डायग्रामेटिकली, तो यहां देखते हैं, लेट्स टेक द रूट, if this is the root, तो यहां पे फॉर्मेटिव फेज कहां होगा और द फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन कहां होगा, तो दिस पर्टिकुलर प्लेस 1, this is indicating the phase of cell formation or the formative phase। then phase of elongation कहां होगा, तो phase of elongation अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है दिस वुड बी इंडिकेटिंग द फेज ऑफ इलॉन्गेशन। एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन की बात करें तो वो कहां देखने को मिलेगा, तो ये जो पोर्शन है जहां से रूट हेड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहां से रूट हेड का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द फेज ऑफ मैच्योरेशन। थर्ड,
ठीक है. सो दिस इज द फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन. रूट की बात हो रही है. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फेज ऑफ इलोंगेशन एंड दिस इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन जहां से रूट हेड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा. डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट. ओके, ग्रोथ रेट की अगर बात करते हैं, सो द ग्रोथ रेट कैन बी अरिथमेटिक, it can be arithmetic, ठीक है. And it could be geometric. Arithmetic growth rate है and there is geometric growth rate. Now what is arithmetic growth rate? तो आपको याद रखना है, this is going to be constant and this is going to appear at the root and the shoot. This is constant and it appears at the shoot and root. ठीक है. अब यहाँ पे किस तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से देयर इज दिस मेरिस्टेमेटिक सेल. सो दिस मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड्स इनटू टू, एंड व्हेन इट डिवाइड्स इनटू टू, one of the cell loses the ability of cell division, okay, and the other cell it consists of the ability of cell division. तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ. It has lost the ability of cell division. अब क्या होगा? अब ये तो डिवाइड नहीं कर रहा है, यही डिवाइड करेगा, तो ये फिर से दो सेल्स बनाएगा. और ये सेल साथ में मैं लिख रहा हूं. तो दो सेल जब बनेंगे फिर से, तो उसमें से एक सेल क्या करेगा? इट वुड लूज द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन. द अदर सेल हैज द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहां पे डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है. तो ये फिर से डिवाइड करेगा, दो सेल बनेंगे. ये दो सेल मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये दोनों सेल मैंने कैरी फॉरवर्ड किए. अब ये जब डिवाइड कर रहा है, दो सेल फिर से बनेंगे. एक सेल के पास एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, इसके पास एबिलिटी है, इसके पास नहीं है. फिर से मैं दिखा देता हूं, ये डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा, और ये तीन सेल मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं. सो दिस इज 1 2 3. अब ये जो सेल बना, इसके डिवीजन के बाद वो सेल डिवीजन नहीं दिखा रहा है, एंड द अदर सेल इज शोइंग सेल डिवीजन. आ रही बात समझ में? तो ये जो ग्रोथ पैटर्न आपको दिख रहा है, दिस इज द एरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न. क्या कहा जाता है? एरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न कहा जाता है. तो इसमें जितने भी सेल्स मैंने कैंसिल आउट करे, ओके, दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन. नो सेल डिवीजन. और ये जितने भी मैंने डार्क करे, दे शो सेल डिवीजन. ठीक है. सो एरिथमेटिक डिवीजन में क्या होगा? जितनी बार डिवीजन होगा, दो सेल्स बनेंगे और एक सेल के पास एबिलिटी होगा टू फॉर्म न्यू सेल, व्हाइल द अदर सेल वुड नॉट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू सेल. ठीक है. क्या मैं मेंशन भी कर देता हूं, कांस्टेंट शूट एंड रूट में आकर होगा, वन सेल divides into two cells, okay, and one cell retains cell division ability, while the other does not.
while the other does not. ठीक है ना. इसको अगर ग्राफिकली अपन देखें so this can be represented as लेंथ और टाइम के हिसाब से अगर देखते हैं इसको, तो यहां पे ग्रोथ आपको दिखेगी. सो लेंथ और टाइम के हिसाब से ग्रोथ बढ़ती जाएगी. अगर मैथमेटिकली इसको पुट अप करना है अरिथमेटिक ग्रोथ को, तो आई कैन पुट इट एज LT equals to L0 plus RT. So this is the initial length, this is the length after time t, this is growth rate and this is time. ठीक है. So mathematically it can be represented as LT equals to L0 plus RT. तो LT is the length after time t, L0 is initial length and R is the growth rate and T is टाइम. ठीक है. यहां पे टाइम एंड लेंथ की बात हुई है. डन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ अगर देखें, आई हैव टू रब दिस डाउन. तो जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है कि ऑल डॉटर सेल रिटेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. All daughter cell retain capacity of division. यहां पे क्या था, सब सेल के पास वन सेल डिवाइड्स इनटू टू and one cell retains the cell division ability while the other does not. One daughter cell retains the ability of cell division while the other cell does not. बट यहां पे क्या हो रहा है कि ऑल द डॉटर सेल्स दे रिटेन कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है. मतलब ये कहां पे हो रहा है, कौन से स्टेज में, ये शूट एंड रूट में हो रहा था, ये कहां पे होगा. सो दिस इज ड्यूरिंग एम्ब्रियो ग्रोथ या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की आप बात कर सकते हो. ठीक है. दिस इज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. तो यहां पे क्या होगा, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो एक सेल डिवाइड कर रहा है दो सेल में, दो सेल डिवाइड. अब ये दोनों सेल के पास क्या है, एबिलिटी टू डिवाइड. जैसे यहां पे एक सेल के पास एबिलिटी टू डिवाइड नहीं थी, एक सेल के ही पास थी, बट यहां पे जो दो सेल्स बनेंगे, इन दोनों सेल के पास एबिलिटी रहेगी किसकी, डिवीजन की. द सेम गोज फॉर द अदर वन. तो यहां पे भी एबिलिटी है, यहां पे भी एबिलिटी है, एंड द एबिलिटी is going to continue. So this is forming two cells, this is going to form two cells, this is going to form two cells. Okay, so we have, तो यहां से दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे और इससे दो बनेंगे. तो every cell when dividing would have the ability to make new cell, जो यहां पे नहीं था. So this is known as geometric growth rate and this is known as arithmetic growth rate. तो arithmetic growth rate कहां देखने को मिलेगी, so this is going to occur in the shoot and the root. और geometric growth rate कहां देखने को मिलेगी, so this is going to occur in the embryo development phase. ठीक है. ग्राफिकली अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पे. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इनिशियल, जो दिस इज टाइम और वेट के हिसाब से अगर मैं लेता हूं यहां पे, तो क्या दिखने को मिलेगा, इनिशियल जो ग्रोथ होगी दैट इज गोइंग टू बी स्लो, देन देयर वुड बी इंक्रीज इन द ग्रोथ, जिसे लैग फेज कहा जाता है, अब से लॉग फेज कहा जाता है. और फिर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद दिस इज गोइंग टू बिकम कांस्टेंट. ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. So we'll give the phases. This is the
स्लो ग्रोथ जिसे लैग फेज कहा जाता है, दिस इज अ स्पीडी ग्रोथ, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे लॉग फेज कहा जाता है। और यहां पे क्या हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी स्टेशनरी ग्रोथ, और दिस इज नोन एज द स्टेशनरी फेज और द कांस्टेंट फेज। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट, और इससे पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था वो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे पहले तो ग्रोथ जो होगी थोड़ी स्लो होगी, और फिर एकदम से ग्रोथ बढ़ेगी, एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट। सो दिस कैन आल्सो बी मैथमेटिकली पुट एज WT इक्वल्स टू W0, 0 मीन्स OERT। ठीक है, मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे WT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट आफ्टर टाइम T, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल ग्रोथ, this is wait after time T, this is base of natural log, and this is R is growth rate, and T is time duration. T is time duration. ठीक है, सो मैथमेटिकली वाला फॉर्मूला यूज करके आप जियोमेट्रिक ग्रोथ को पता लगा सकते हो। Okay, good. So let's move ahead and talk about two more growths, that is absolute growth and growth rate. So let's make two leaves first. दो लीफ दिखाते हैं। ठीक है, ये दोनों लीफ में देयर इज ग्रोथ, दिस इज लीफ ए, दिस इज लीफ बी, जिसकी इनिशियल साइज है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो साइज है दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दोनों लीफ में क्या हो रहा है, देयर इज ग्रोथ टेकिंग प्लेस। यहां पे भी ग्रोथ हो रही है, इस लीफ में भी, एंड इस लीफ में भी ग्रोथ हो रही है, और दोनों में जो ग्रोथ हो रही है दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही लीफ में जो ग्रोथ है दैट इज ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट वन लीफ इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज, अनदर लीफ इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज। नाउ यहां पे दो चीजें आती है, वन इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, देयर इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दैट इज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो दोनों में लीफ ए और लीफ बी दोनों में जो ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में। let's put it as per day। ठीक है, सो दैट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अभी यहां से एक और चीज अपन निकाल सकते हैं विच इज नोन एज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकाल सकते हो। रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने के लिए वी शुड बी नोइंग कि ग्रोथ कितनी हुई है और इनिशियल साइज कितनी थी इन 200। इस फॉर्मूला को यूज करके अपन निकाल सकते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, सो अगर फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर लीफ ए, तो लीफ ए की केस में ग्रोथ कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ है, और इनिशियल साइज कितना था, तो इनिशियल साइज भी था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन 200 कर देंगे।
सो यहाँ पे जो रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना हो जाता है, सो द रिलेटिव ग्रोथ रेट बिकम्स 100%। तो जो लीफ ए है उसमें जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है कितना है, 100% है। यही चीज अगर मैं बी के बारे में देखूं कि बी में ग्रोथ रेट कितना है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। इनिशियल ग्रोथ कितना है, सॉरी ग्रोथ कितना है, सो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ है, और इनिशियल साइज कितना है, तो इनिशियल साइज है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 करेंगे। सो इंटू 100 करेगा तो क्या मिलेगा, सो वी गेट 10%। तो भले दोनों में ग्रोथ 5% की हो रही है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो रही है, बट जब आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालते हो, रिलेटिव ग्रोथ निकालते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है। सो ए के केस में जो एक्चुअल ग्रोथ है दैट इज 100%, व्हाइल बी के केस में जो एक्चुअल ग्रोथ है दैट इज 10%। ठीक है, सो रिलेटिव ग्रोथ इज क्लियर, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज क्लियर। इस चीज को यूज किस में किया जाता है, सो दिस इज यूज्ड इन टू कंपेयर growth in plants। to compare growth in plants। ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आपको पता चल गया होगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट आपको पता चल गया होगा, बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड डू लेट मी नो। ठीक है, सो आज के सेशन में आई विल कीप दिस मच ओनली। इन द नेक्स्ट सेशन विल मूव अहेड and we'll talk about further details regarding the chapter. Go through the lectures properly। काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके, सो we'll keep this much for the session। Thank you so much।